and just click on this link. Okay. Click on this download SDK at 64. Yes. Yes, Okay, sir. it started. Downloading started. Now download Git as well. It is installed at your end or not? Which one, sir? Git. Git is not installed, sir. Install that as well. On a Google, just type download Git. और ये भी डाउनलोड Download करना है, ये Git. फर्स्ट वन डायरेक्टली? No. Just don't do anything. Just leave it. It start downloading. Just download Git. हाँ. Click on Yes, this sir. Downloading. install for Windows. Click on this first link. Click here to download. First link on top. Click हाँ, here click for here. okay. VS Code is there with you or not? Visual Studio. VS Code और Visual Studio? Visual Studio भी करना है, VS Code भी करना है। विजुअल स्टूडियो है सर, मैंने ना 2022 का इंस्टॉल किया था, मैं बता रहा हूँ। हाँ, इसके इंस्टॉलर में जाके देखो। इंस्टॉलर में जो इंस्टॉलर आ रहा है ना नीचे, थोड़ा ऊपर हाँ. ऊपर जाओ। हाँ, इस पे क्लिक करो। हाँ. आपका एक डाउनलोड कंप्लीट हो गया, तो शायद गिट वाला और दोनों ही कंप्लीट हो गए। पहले उसको वो कर लेते हैं, इसको तो देख लेंगे। आप जाओ, डाउनलोड हो गए आपका दोनों। हाँ. इस पे क्लिक करो, डबल क्लिक कर दो यहीं से चाहे। ऐसा. दोनों को इंस्टॉल कर दो आप। नेक्स्ट करते हैं ना, कुछ नहीं चेंज करना। वो भी इंस्टॉल कर लो। आपका डॉट नेट भी चला दो, साथ में ऐसा. चल जाएगा वो। इसको बंद कर ये दो, भी कैंसिल कर Git का दो। ही सही सब है, हाँ. इसको कैंसिल कर दो। डॉट नेट भी इंस्टॉल करने के लिए लगा दो। So download folder is already opened. Just you need to go there and click on this. Oh.
Lift 3 times. AOA one. Please check it is installed or not. Yes, sir. Check Git is installed or not. What is the status of our Git? Git na extracting showing, sir. Okay, no worries. यहाँ पे भी एक्सट्रैक्टिंग ही शो हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है. No worries, no worries. So now what we will do after installing this, we will check. Okay, go to GitHub, please. Go to GitHub. Okay. GitHub.com. यस सर, ओपन किया सर. ठीक है, इसको खोलो. ये जो है ना .NET कंप्लीट .NET, इस प्रोजेक्ट को देख लो. ये NFT, ये जो है आर्किटेक्चर, ये फोल्डर खोलो. इसके अंदर सारी फाइलें पड़ी हैं. ठीक है, खोलो इसको एक बार. नीचे जाओ, नीचे नीचे प्लान फाइल खोलो. plan.md फाइल खोलो. इसको देख लो. ये हमारा दिस आर ऑल करिकुलम. We will अच्छा. complete in 20 hours. Okay, and here we will focus on a theory 20%, 80% on a practical only. Okay, Okay. Yes, sir. go down please. So this is a day 1 and R1. Okay, so if you go down, then in this day we will discuss about the setup thing and what are this introduction of this platform, CLRI, CTS, CLS, Microsoft, this intermediate language. Okay, managed and managed code, C# BB overview. Okay, Yes, sir. so we will discuss this in a second. You can say this. R means we will discuss about programming language, which you already know, but we will check in the context of C#. Okay, like how you can create a variable, how you can say use a operator, how you can means run a loop, how you can use a conditional statement like if, else, switch. Okay, so Yes, sir. if you check, could you go up in this file
Left hand side files are there, am I right? No, लेफ्ट हैंड साइड. here only हाँ. you are able to see this files. Left, go up, ओके, लेफ्ट. up there, yes. Click on this R1. So here, अच्छा. meanwhile, our downloading is going on. You can just go on through this. Okay. So I will explain what we are doing here. So basically, when you write any programming language, am I right? So under the hood, it will convert into a means system understandable or computer Yes. understandable code. Okay. तो हिंदी में करेंगे, थोड़ा इंग्लिश से हिंदी में थोड़ा बेटर होगा, मुझे चलेगा. कोई मेरे को कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी की क्लास है इसीलिए तो मैंने कहा था. देखो अभी क्या होता है कि हाँ. मैं जो कंप्यूटर है वो समझता है 0101, इसके यस सर. अलावा वो कुछ नहीं समझता. ओके. यस सर. और जो हमारा ये है, हम इंग्लिश समझते हैं. अगर हमें आपका नाम भी मैं अगर 0101 में लिखूंगा तो आप अपना नाम भी नहीं पढ़ पाओगे, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना. तो हाँ. अब क्या है कि उसको जो है कि हम अपनी लैंग्वेज में जो हम समझते हैं कि जैसे इफ इंग्लिश बोलते हैं हम, है ना, तो ऐसे हाँ. ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. तो वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम अपना कोड लिखते हैं कि क्या करना है तुम्हें, ये एप्लीकेशन क्या करेगी, वो लिखते हैं हम. और उसको लिखने के बाद जो एक मिडल मैन होता है, जो इस कोड को जो हमने लिखा है कंप्यूटर को समझाने के लिए उसकी भाषा में कन्वर्ट कर देगा जो वो समझता है. ओके. क्लियर. यस सर. तो उसकी भाषा में वो कन्वर्ट कर देगा, तो वो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे कर रहा है कैसे नहीं. आपको ये समझने की जरूरत है कि जो ये टर्म्स है ये क्या क्या है. ओके. यस. तो अभी क्या है कि पहले क्या होता था, सिस्टम जो होते थे उसमें क्या होता था कि पहले सिस्टम देखा जाता था कि ये सिस्टम है, तो इसी के रिगार्डिंग ही कोड लिखा जाएगा सारा कुछ, और वो उसी पे चलता था. क्लियर. हाँ. वो यस सर. उसी पे ही चलता था. पर फिर जैसे जैसे चीजें डेवलप हुई तो ये आ गया कि एक जगह लिखो और उसको सब जगह चलाओ. तो ओके. वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आपका जब वो इंटरमीडिएट कोड बन रहा है, वो इंटरमीडिएट कोड बनेगा, और उसको चलाने के लिए आपके पास आपकी मशीन पे वो स्टोर होना चाहिए जो रन टाइम है. ठीक है. हाँ. वो इंस्टॉल होना चाहिए तो आपका वो चल जाएगा, क्योंकि उसको चलने के लिए चीज चाहिए. वो अगर इंस्टॉल है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैटर ही नहीं करता कि कौन सा है कौन सा नहीं है, वो लिनक्स है विंडो है. वो इसलिए तो आज जो ये हम सीखने वाले हैं इसमें यही सीखने वाले हैं इनका मतलब क्या क्या है. ओके. तो इसमें जो है कि जो आपकी डॉट नेट होती है, इसमें क्या है कि डॉट नेट एक जो है कि फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क में मैं कह दूं कि एक तो आपने जो है कि कोई चीज बनानी है, एक तो आपके पास पूरा साचा वगैरह बनाओ, डाई वगैरह बनी हो, सारा कुछ बनाओ, तो आप उसे इजीली बना लोगे. हमें राइट. और यस सर. अगर आपको हर एक बार ही वो सारा स्क्रैच से करना पड़े तो वो टीडियस काम है ना हमारे लिए. तो हाँ. यहाँ पे हमारे पास जो फ्रेमवर्क कहलाते है उसमें क्या होता है कि चीजों को करने का वे होता है. ओके. वो जो है कि काफी चीजें उन वे को फॉलो करो, जो काफी चीजें कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हाइड कर लेता है. ओके. यस सर. तो इसको फ्रेमवर्क कहते हैं. और ये जो CLR है ये कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है. ठीक है. जो कॉमन है, क्योंकि जो आपकी ये डॉट नेट है ना, इसमें बीबी डॉट नेट की भी लैंग्वेज है, उसमें भी कोड लिख सकते हो, सी शार्प में भी लिख सकते हो, और F शार्प में भी लिख सकते हो. पर उनको चलाने के लिए, क्योंकि बार जो एक चीज है कि आप एक बिजनेस चला रहे हो तो आप यही चाहोगे ना कि जितने भी मेरे फ्लेवर है एक जगह से कंट्रोल हो जाए, कि अलग अलग ना करना हाँ. पड़े.
तो और फिर ये क्या है, CTS। ये CLR है, तो यही हो गया हमारा कि ये रन टाइम हो गया हमारा। ठीक है। और हाँ CLR हो गया हमारा CTS। तो ये CTS जो है हमारा, ये है आपकी लैंग्वेज का है। ये जो आपकी लैंग्वेज है ना यहाँ पे सारी, तो वो जो है कि कॉमन, 2 मिनट, कहाँ पे देखा था। हाँ, जो आपकी ये टर्म्स है ना, ये जो हाँ CLR है, CTS है। तो हाँ CTS आपकी क्या कहती है कि भाई आप जो है कि यहाँ पे CTS जो होती है कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम हो गया CLR। और इसके बाद जो आपका आ जाता है कॉमन टाइप सिस्टम। कि मैंने आपको बताया ना कि आपका 3 वो चलती हैं, C# भी हाँ चलती है, VB.NET भी चलती है, .NET की अपनी भी टाइप है। क्लियर। हाँ तो वो तीनों के लिए जो कॉमन है टाइप सिस्टम है, वो काम करता है। तो इसमें अगर हम नीचे जाएंगे तो आप देखोगे कि आपका ये जो काम करता है, ये ऐसे ही काम करता है। और इसमें क्या है कि भाई वो जो किसी में भी लिख लो, मतलब वही है। जैसे आपने नमस्ते करना है तो नमस्ते आप मराठी में कर लो, हिंदी में कर लो, मीनिंग तो वही है ना। वही है। हाँ और आपने अगर ये .NET फ्रेमवर्क सीख लिया, तो ये फ्रेमवर्क क्या है कि इसमें आप जो है कि सब तरह के एप्लीकेशन बना सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, आपके कंप्यूटर पे जो चलनी चाहिए वो बना सकते हो, कंसोल बेस बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। कहने का मतलब कि आप जो भी किसी तरह की एप्लीकेशन है वो सारी की सारी बना सकते हो यहाँ पे, अगर आपने ये सीख लिया तो। हाँ, यस पर ये होगा कि उसमें लर्निंग कब होगा आपका आगे, कि आपको वो आगे चीजें सीखनी पड़ेंगी, कैसे चीजें चलती हैं। क्लियर। यस सर। तो ये हो गया CTS, कॉमन टाइप सिस्टम। एक CLS हो गया, जो हो गया कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। हम्म। कि देखो, आपकी कोई भी चीज हम लेने जाते हैं तो उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है ना, कि इसका वेट कितना है, इसका प्राइस ये है, इसको हाँ जो है कि इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं, इसका जो हाँ टाइम है इतने टाइम तक आप यूज कर सकते हो, है ना। हाँ तो ये MSIL क्या है कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि बीच में है, जो ओके। बीच में जो है कि वो है ये जो आपने लिख दिया, जब आप इसको रन करोगे, जब बिल्ड करोगे, तो उसने क्या हम्म। करना है कि उसने वो बीच का कोड बना देना है कि जो रन टाइम पे चलेगा, हाँ। और वो रन टाइम उसको चाहिए। ठीक है। हम्म। तो अब क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड जहां से वो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो सोर्स कोड है। ओके। इंटरमीडिएट लैंग्वेज एंड मशीन कोड। इंटरमीडिएट जो बीच का कोड है, अच्छा। जो कंपाइलर ने, जो हमारा कंपाइलर जब आप बिल्ड बना रहे हो तो उसने बना के रख दिया है, पर वो चलेगा तभी जब आप उसको रन टाइम मिलेगा। अच्छा। ठीक है। तो ये दूसरा तीसरा भी मैंने आपको आंसर कर दिया। ठीक है। तो हाँ आइडेंटिफाई मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड। देखो, मैनेज्ड कोड जो फ्रेमवर्क खुद मैनेज कर रहा है। क्लियर। हम्म और हम्म। अनमैनेज जो उसके हाथ में नहीं है, सिंपल। ओके। वो कह रहा है कि भाई ये चीजें तो मैं हैंडल कर लूंगा, पर जो हम्म। आपका सिस्टम का ही, जो सिस्टम की चीजें हैं, ठीक है, सिस्टम हाँ का कोड है, वो तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें आप जो है .NET में हार्डवेयर लेवल की भी चीजें इंटीग्रेट कर सकते हो, जो कि C++ और सी में लिखा जाएगा कोड। तो वो हम्म एक हो गया मैनेज्ड, एक अनमैनेज्ड हो गया। ओके। फिर उसके हम्म। बाद क्या होता है कि आप जो है कि जब इंस्टॉल वगैरह ये कर लोगे, तो आपका जो ये चलेगा कोड, ये आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए या आपको VS कोड चाहिए।
नहीं, आपको कुछ नहीं चाहिए। आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हो, आप पावर शेल से भी कर सकते हो, टर्मिनल से भी कर सकते हो। ओके। अच्छा। पर हम्म। ये है कि आईडी से ये बेनिफिट हो जाता है कि आप यूआई पे सारी चीजें कर लेते हो और वहां पे क्लिक क्लिक करके कर सकते हो, पर वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है। हाँ। तो हम्म। ये जो प्रोजेक्ट हम छोटा सा बनाएंगे, अगर आपका ये सेटअप हो गया तो उसमें आप देखोगे कि हम उसमें फोल्डर वगैरह बन के आ जाएंगे अपने आप ही। आपने बताना है कि यस मैंने सर। ऐप बनानी है, जो कुछ भी उसमें कुछ फाइलें बन के आ जाएंगी। उनका मतलब होता है यस। कि भाई जो सी एस फाइल होगी, प्रोग्राम डॉट सी एस, जहाँ पे आप कोड लिखोगे। ठीक है। हाँ। जब यस। आप वो उसको वो कर दोगे, एक प्रोजेक्ट डॉट उसके साथ होगी प्रोजेक्ट फाइल होगी, जिसमें कि आपकी डिपेंडेंसी होगी और इसकी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन होगी। जब आप बिल्ड करोगे, जब कमांड चलाओगे रीस्टोर या बिल्ड की, तो उसमें क्या होगा आपका कि वो हाँ। ऑब्जेक्ट फोल्डर बना देगा। ठीक है। यस सर। और उससे क्या होगा कि आपका जो भी लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल है वहां पे आपको मिल जाएंगी, और भी यस। चीजें होंगी। तो ये चीजें करेंगे तो अगर अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, अगर नहीं तो इसको गो थ्रू कर लो कि मेन वाइल वो इंस्टॉल हो रहा है। तो आप यस इसकी सर। नीचे पूरी अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, मैंने हाई लेवल बता दिया आपको, गो थ्रू कर लो। आपको क्वेश्चन या कंसर्न है तो मेरे से पूछ लो आप। यस सर। नीचे जाओ, इसमें पढ़ो इसको, लर्निंग ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बोल के ही तो पढ़ो। नीचे नीचे करके एक बार बोलता हूँ मैं एक बार। आप दो जगह से ज्वाइन कर लिया शायद आपने, सिद्धार्थ। हाँ सर, क्योंकि ना इसमें से मतलब वो आवाज का कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसलिए दूसरी डिवाइस से बोल सकता हूँ ना, इसलिए। ठीक है, ठीक है, उसको म्यूट कर लो। ठीक है, आप देख लो, पढ़ते जाओ साथ साथ ना। हाँ सर। सिस्टम पे भी म्यूट कर दो अपने को, क्योंकि मेरी हाँ आवाज किया वहाँ आएगी पे। नहीं तो। नहीं नहीं, वहाँ पे तो किया, ये- एकदम ही आवाज बंद जैसे कर दिया। नहीं, माइक भी बंद कर दो वहां पे। हाँ वहाँ पे माइक बंद है सर। ओके, चलो देख लो इसको। जहां पे कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, ठीक है। ओके ओके सर। हाई लेवल मैंने बता दिया आपको, जहाँ पे डाउट होगा मेरे से हम्म। पूछ लेना। लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो मैंने कवर करवा दिया, नीचे आ जाओ। वैसे तो मैंने ओके। सारा ही कवर करवा दिया, आप देख लो एक बार सारी चीजें। कोई क्वेश्चन या कंसर्न आ रहा है तो वो पूछ लो। यस सर। ये मैंने बता दिया ना आपको सारा। हाँ हाँ। तो ये पढ़ा है, ये पढ़ना है ये प्लेन एग्जीक्यूशन से हाँ, ये CI पढ़ लो, सीक्वेंसेस। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्योंकि जो अच्छा। कोई भी चीज होती है सिद्धार्थ, वो हमारे नॉर्मल सिनेरियो से ही आती है ना, नॉर्मल डे टू डे लाइफ से भी इंस्पायर्ड होती है, या कोई हाँ। सॉफ्टवेयर है या कुछ भी है। तो ये नॉर्मल इंग्लिश में आपको बताया गया उसी चीज को ना। तो जैसे अभी आपने कुछ भी डिश बनानी है, जो कुछ भी करना है, तो बेसिकली हाँ। आपके पास रेसिपी होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए हम्म। ना। तो समझ लो आपके पास डॉट नेट जो हम पढ़ रहे हैं वो एक किचन है। ठीक है। यस सर। अगर आप रेसिपी आपके पास है, आपको पता है कि मेरे को क्या करना है। ठीक है। हाँ। तो किचन किचन में जाके आप प्रोग्राम बना सकते हो। वो प्रोग्राम जो है मोबाइल के लिए हो, कहीं भी हो, वो चलेगा।
ओके। अच्छा। हम्म। तो इसमें भी रेसिपी में क्या करना पड़ता है कि वो स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं ना। तो आपके जो माइंड में है वो कैसे बताओगे कंप्यूटर में, लैंग्वेज चाहिए आपको, है ना। और अच्छा। उसको जो है कन्वर्ट करने के लिए जो कंप्यूटर समझ सके उसके लिए इंटरमीडिएट बंदा चाहिए जो कंपाइलर होगा हमारा, हाँ। है ना। हाँ। और फिर डॉट नेट रन टाइम क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा और फिर ठीक है आपकी ना ये एप्लीकेशन चलने लग जाएगी। स्क्रीन उसका, एक सेकंड ना, स्क्रीन ब्लैंक हो गया उसका, 1 मिनट का। हेलो सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, वो अनरिस्पॉन्सिव हो गया था अभी फिर से। अभी ठीक हुआ है, वापस करता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। ओके। नीचे जाओ, हाँ। नीचे जाओ। ये तो आपके पास रहेगी, कभी पढ़ लेना। बस यस आपको सर। कोई जल्दी से कर लो कि मीन्स कोई दिक्कत आ रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा, वो पूछ लो मेरे से। ये फाइल आपके पास ही रहेगी, आपको कभी भी देख सकते हो, आप एडवांस में भी देख सकते हो, मेरे को इशू नहीं है ना। हाँ। ओके। क्योंकि मैंने ही पहले ही कहा कि हम टीम की तरह काम करेंगे। तो अगर जल्दी यस सर। खत्म हो जाएगा तो हम जल्दी कर लेंगे, कोई जरूरी थोड़ा है कि फिर बाकी जो है कि आपका वो बच जाएगा, कुछ आगे सोचोगे आप, प्रैक्टिकल कर पाओगे ना। ये तो यस 20 घंटे तो मेरे हैं सर। ही हैं आपके साथ। ओके। तो ये मतलब बीच के इंटरमीडिएट लैंग्वेजेस है सर, कंपाइलर, प्रोग्रामर डॉट डीएलएल और ये सीएलआर जेट कंपाइलर। हाँ हाँ हाँ। तो फिर ये मशीन इंस्ट्रक्शन से उसका मेन लेवल मशीन कोड स्टार्ट हो रहा है ना। हाँ, मशीन इंस्ट्रक्शन, हम्म। वो मशीन इंस्ट्रक्शन ही समझता है। हरेक का देखो, हरेक का सीएलआर का अपना काम है, ये चीजें ऐसा। करता है। रन टाइम हो गया ना ये। हाँ। सब मतलब ये सब वो उसका सिर्फ डिस्क्रिप्शन है ना जो ऊपर दिया था हाँ, इसका ना। वो मैंने आपको समझा दिया है सारा, बस उसका डिटेल में है हाँ, कि कल को मतलब ये आप। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम अपना इंटरमीडिएट कोड है, बराबर ना। नहीं, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो ये इंटरमीडिएट कोड बनाएगा, जो उसको रन करेगा, नीचे देखो ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीचे जाओ। हाँ। गिट आपका इंस्टॉल हो गया है। ओके। रन टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो आप, हाँ। देखोगे क्या क्या करता है। जस्ट नाउ, जस्ट वंस, जस्ट वंस करके खत्म कर दोगे। ये देख रहे हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, ठीक हाँ। है।
मेमोरी मैनेजमेंट करता है, गार्बेज कलेक्टर, एक्सेप्शन हैंडलिंग। रन टाइम मीन्स वो जो मैं कह रहा था ना कि रन टाइम होना चाहिए आपके सिस्टम पे, वो तो आपका हम्म। चलेगा कोड। समझ आई? यस सर। लिनक्स हो जो कुछ भी, तो सिक्योरिटी स्कोर, टाइप सेफ्टी, थ्रेड मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ये सारा कुछ इसका पार्ट होता है रन टाइम में। ओके। देखो ये डॉट नेट एप्लीकेशन आपने लिखी एंड ऑपरेटिंग हाँ। सिस्टम के बीच में है ये। हम्म। ठीक है, यस सर। चलो, इसीलिए कह रहा हूँ मैंने हाई लेवल बताया है। आप पढ़ोगे, कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछ लो। यस सर। तो सर CLR और इंटरमीडिएट लैंग्वेज में आगे क्या जाओ, फर्क मतलब? आगे जाओ, सब आंसर मिल जाएंगे। नहीं मिलेगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि ये मैंने आपके लिए ही बनाई है फाइल, कि आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ये इंटरप्रेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोड लिखा है ना, तो वो हाँ। दूसरी मशीन पे भी एज इट चले, उसको कहते हैं। कि आज आप विंडो पे काम कर रहे हो, आपने सिस्टम विंडो पे अपना ये बनाया एप्लीकेशन, वो मैक पे भी चल जाए, वो लिनक्स पे भी चल जाए, इसको कहते हैं इंटरऑपरेटेबिलिटी। एक बार आप गो थ्रू कर लो, और अगर कोई यस। डाउट आ रहा है कि सर ये मेरे को ये समझ नहीं आया, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। हाई लेवल मैंने समझा दिया है आपको ये सारा। अगर कहते हो कि मैं समझाऊं, मैंने पढ़ना है तो मैं पढ़ लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक लेना, ब्रेक लें क्या? हाँ सर लेते हैं। चलो फिर हम क्या करते हैं, 9:22 पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर। मैं ये अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ एक पार्ट की, स्टार्ट कर लेंगे हम।